Hello students, how are you? I hope you might have gone through the first video and I hope you might have understood the things. If you haven't understood anything, please specify the part of the video that you have not understood or the questions you have not understood. Send them to me through WhatsApp so that the questions can be solved in the next class. Is that clear? Please don't hesitate to send your problems, as 11th is a bit tough as compared to 10th. So you have to keep in mind that you have to study along with what I am teaching you. Bring in more questions, bring in questions from the NCERT. We have just started with the chapter. As the chapter progresses, it will become more and more tough. So wherever notes are required, make the notes from the video. Wherever you want to learn some formula, write it on your notebook and then learn it. Make the notebook along with the videos. You have ample amount of time at home. Is that clear? I am moving on to the next second lecture from basic concepts, and that is also concerning the mole concept. We have done a few very simple questions from mole concepts. We'll move on to the next complex questions from mole concept. We'll finish mole concept today. Then in the next class we'll be starting with methods of expression of concentrations, that is mole fraction, molality, molarity, normality. That part is tough. Is that clear? I'm starting with the mole concept again. We had already done some formula. Okay, now to a question. The formulas we have done, I can write it down again. Number of moles is equal to given mass upon molar mass. Number of molecules is equal to number of moles into Avogadro's number, that is 6.02 into 10 raised to power 23. इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो number of molecules will also be equal to given mass upon molecular mass into n naught. Okay, then volume at STP, if it is a gas, volume at STP is equal to number of moles into 22.4 liters. If you put the value of number of moles here, it will be given mass upon molar mass into 22.4 liters. So these are the few basic formulae for the mole concept. I'll be starting with the question. Atomic masses you might have already noted from the first video. Atomic masses पता होंगे, molar mass आप ग्राम, molecular mass आप निकाल सकते हैं. Avogadro's number 6.02 into 10 raised to power 23 ले सकते हैं. ठीक है. अगर ये एटम्स की बात होती है तो वहाँ पे हम ग्राम एटम्स की बात करते हैं. मोल को हम ग्राम एटम बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स को हम एटम्स बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे. Question number 1 is calculate the volume occupied by occupied by 1.7 grams of H2S at STP. Volume occupied by 1.7 grams of H2S at STP. Volume at STP is given mass upon molecular mass into 22.4 liters. Given mass upon molecular mass into 22.4 liters. So volume at STP is equal to given mass 1.7 molar mass of H2S. हाइड्रोजन 1 होता है, 1 into 2 plus 32 is equal to 34. 1.7 by 34 into 22.4 liters. This goes by 20. This will comes out to be 1.12 is equal to 1.12 liters at STP. This is the volume occupied by 1.7 grams of H2S at STP. Is that clear? Next is
Question number 2. What mass of laughing gas? Do you know what is laughing gas? Laughing gas is nitrous oxide, N2O. Laughing gas is N2O, nitrous oxide. What mass of laughing gas, nitrous oxide, will occupy a volume of 0.56 liters at STP? 0.56 liters at STP. Now what is given to you? Volume at STP is given to you. You have to calculate the mass of nitrous oxide. Let it be X. Putting in the same formula, volume at STP is equal to given mass upon molecular mass into 22.4 liters. Volume at STP is given to you 0.56. Let given mass be X. Molecular mass of N2O. Nitrogen is 14. 14 into 2 plus 16. 28 plus 16 is 44. So X by 44 into 22.4 liters. What will be X equal to 44 into 0.56 upon 22.4. ये 40 आ जाएगा बेटा, आप अगर कैलकुलेट करोगे 44 बाय 40, 4 से जाएगा 11, ये आएगा 10 इज इक्वल टू 1.1 grams. Is equal to 1.1 grams. You have to just choose the formula in which you have to put the values to get the required quantity. Is that clear? Moving on to the next question from mole concept. Next question from mole concept is an important one, beta. Third question is, what mass of carbon dioxide will have the same number of molecules? Please ध्यान देना, same number of molecules as 0.7 grams of carbon monoxide. दो इक्वेशंस बनेंगे इसमें. What mass of CO2 will have the same number of molecules as 0.7 grams of CO? अब आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की, क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. उन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दोगे. क्या कर दोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल CO2 के और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CO के आप फॉर्मूला लिखिए. CO का मास आपको गिवन है, CO2 का मास को आप X ले लें, दोनों को इक्वेट करें. नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO विल बी इक्वल टू गिवन मास 0.7 अपॉन मोलर मास ऑफ CO. CO का मोलर मास क्या होगा? 12 प्लस 16 इज इक्वल टू 28. ये CO का मोलर मास है अपॉन 28 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO है. अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 क्या होंगे? मास इज नॉट गिवन टू यू, सो लेट इट बी X. व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44. X by 44 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23. ठीक है. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम. अब मॉलिक्यूल सेम है तो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके X की वैल्यू निकाल लो. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाया, CO के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का लगाया, CO2 का लगाया, CO2 के मास को आपने X ले लिया, दोनों को इक्वेट करके आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो व्हाट विल बी दिस लाइक? 0.78 upon 28 into 6.02 into 10⁻23 is equal to X by 44 into 6.02 into 10⁻23. ये कट जाएगा. So X will be equal to 0.7 into 44 upon 28. ये पॉइंट हट जाएगा, 280 आएगा, ये 40 आ जाएगा. अगेन द सेम आंसर, 44 by 40 is equal to 1.1 gram.
So this is how to solve such questions where number of molecules are same. Had it been same volume, तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा के एक के मास को x लेके दूसरे मास आप निकाल सकते हैं. Is that clear? Any problems from this question? You can, if you have any problems, you can WhatsApp me, and then the question can be done again in the next class. Is that clear? So this was the question number 3 from mole concept. Then is what mass of N2 will occupy the same volume at STP as occupied by 0.8 grams of O2 gas. What mass of N2 will occupy the same volume at STP as occupied by 0.8 grams of O2? In this question, what will you do, beta? In this question, you will write the formula for volume at STP and then equate both the things. One mass is given to you, the other can be calculated. Volume at STP for O2 is equal to given mass of O2 0.8. O2 का मोलर मास जो है that is equal to 32. 16 2s are 32. So 0.8 by 32, 0.8 divided by 32 into 22.4 liters. So volume at STP for N2. N2 का मास हमें नहीं गिवन है. We are not given the mass of N2. So let it be X. What is the molar mass of N2? 14 into 2 is equal to 28. X by 28 into 22.4 liters. Now the condition given is same volume. So that means दोनों की volume same है. दोनों equations को now what will we do? दोनों equations को हम equate कर देंगे. We'll equate both the equations and then calculate the value of X. Am I clear to you? I hope I am. So volume is same. So what will be this? As volume is same, 0.8 by 32 into 22.4 liters is equal to X by 28 into 22.4. ये कट जाएगा. So what will be X equal to 0.8 into 28 upon 32. ये पॉइंट टूट गया, ये 40 से चला गया. So that will be 7 by 10, 0.7 grams of N2. 0.7 grams of N2 will occupy the same volume as occupied by 0.8 grams of O2 at STP. Is that clear to you? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले को इक्वेट करिए. अगर मोल सेम है तो मोल्स के फॉर्मूले को इक्वेट करिए. वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वेट करिए. इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो दीज वर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, very simple questions. Now moving on to a few complex questions. बेटा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. अब इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं. अब आपको एक गैस जार दिया होगा, उसमें एक गैस दी होगी, ठीक. उस गैस का आपको मास दिया होगा और बोला जाएगा कि इतने मोल्स उसके निकल गए, बाकी मास क्या बचेगा. समझे बात को? इफ़ यू आर गिवन द मास ऑफ ए गैस इन ए गैस जार, कुछ गैस लीक हो गई, मैं कहूँगा उसके मोल्स लीक हो गए, इतने मोल्स लीक हो गए, बाकी मास क्या बचा. तो मैं क्या करूँगा, यूनिट सेम करने के लिए जो मोल्स एस्केप किए गए हैं उनको मास में चेंज करूँगा, फिर टोटल मास में से मास एस्केप्ड माइनस करके रिमेनिंग मास आ जाएगा मेरे पास. तो बिकॉज आई कैन नॉट सब्सट्रैक्ट मोल्स फ्रॉम मास और मास फ्रॉम मोल्स एट्सेट्रा.
what I'll do, see a question. A gas jar contains 66 grams of कार्बन डाइऑक्साइड. 66 ग्राम जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी. आउट ऑफ दिस 0.5 moles of carbon dioxide escaped. What mass of carbon dioxide will remain in the gas jar? What out of this 0.5 moles of CO2 escaped, what mass of CO2 will remain in the gas jar? Now initially mass is given, लेकिन escape कर रहे हैं moles. अगर मैं moles को in 0.5 moles को mass में change कर लूँ तो फिर इस mass में से इस mass को minus करके remaining mass आ जाएगा. ठीक है, अगर मैंने remaining moles पूछे होते तो क्या करूँगा, फिर उसके इसमें इस mass को moles में change कर लूँगा. मोल्स में से मोल्स माइनस करके आंसर मोल्स में आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब देखें कैसे. पहले तो आप गैस जार बनाइए. ये गैस जार था, इसके अंदर इनिशियल मोल्स 66 ग्राम्स था, इसमें से एस्केप किए 0.5 मोल्स. रिमेनिंग मोल्स मैंने निकालने हैं. 0.5 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर मैं पहले मास निकालूंगा. ठीक है, तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स इज 0.5 इज इक्वल टू गिवन मास x ले लिया. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज 44. So x comes out to be 22 grams. So what is this? Mass escaped. Moles escaped मेरे पास थे. ये था number of moles escaped is equal to given mass upon molar mass. 0.5 is equal to x by 44. 22 grams mass escape हो गया. अब 22 ग्राम जब escape होगा तो रिमेनिंग मास क्या होगा, 10. रिमेनिंग मास इज इक्वल टू इनिशियल मास माइनस मास एस्केप्ड इज इक्वल टू इनिशियल मास वाज 66 माइनस 22 ग्राम्स हैज एस्केप्ड इज इक्वल टू 44 ग्राम्स ऑफ CO2 रिमेन रह जाएगी. अगर मैंने यहाँ पे प्लीज बेटा ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ से पूछा होगा मोल्स रिमेनिंग तो मैं इसको मोल्स में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना. मैंने क्या करना है, मोल्स रिमेनिंग करता तो मैं इस मास को पहले मोल्स में चेंज कर लेता, इसी में पुट करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते मेरे पास. मोल्स में से मोल्स डायरेक्ट इजीली माइनस करके मेरे पास रिमेनिंग मोल्स आ जाते हैं. ऐसा क्वेश्चन भी हम करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. बिकॉज इफ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट और ऐड एनीथिंग यूनिट सेम होने चाहिए. अगर मास है तो मास में से मास माइनस होगा, मोल्स होंगे तो मोल्स में से मोल्स माइनस होंगे. इज दैट क्लियर? सो दैट इज the next question. Now moving on to the next question beta. This may appear a bit tough for you, but we have to do these, practice hard, do questions from the NCERT of mole concept and then bring on the problems or send me the problems through WhatsApp. Next is a jar contains 5 moles of carbon monoxide. Out of this 42 grams of CO escaped. Calculate the remaining mass of CO in the gas jar. Remaining mass of CO in the gas jar. तो मेरे को इनिशियली मोल्स गिवन है. इनिशियली मेरे को मोल्स गिवन है बेटा, 5 मोल्स इनिशियल गिवन है. एस्केप किया है मास. मुझे जो रिमेनिंग पूछा गया है उस पर करना है. मास मुझे रिमेनिंग पूछा गया है. देन व्हाट विल आई डू? Should I convert this into moles?
और शुड आई कन्वर्ट दिस इनटू मास? अगर मैं इसको मास में चेंज करूंगा तो इजी हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है इसको मोल्स बना लूँ, मोल्स में से मोल्स माइनस करूँ, फिर रिमेनिंग मोल्स आएंगे, फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2 बार फॉर्मूला लगेगा मास निकालने का। तो डायरेक्टली जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसी यूनिट में चेंज करके मैं मास और मोल्स में, मोल्स को मास में चेंज करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सो इनिशियल मोल्स ऑफ CO 5। सो मास ऑफ CO क्या आएगा? अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स इज 5, गिवन मास x, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO 12 plus 16 is equal to 28, x by 28, x is equal to 140 grams. This is the initial mass. This is the initial mass. Mass escaped 42 grams. Am I right? Mass escaped is 42 grams. पूछा क्या गया है, कितना मास रिमेनिंग है? मास रिमेनिंग विल बी इक्वल टू 140 माइनस 42, 140 माइनस 42 कितना आ जाएगा? 140 में से 42 ग्राम्स माइनस कर दीजिए तो मेरे पास आ जाएगा 98 ग्राम्स। कितना आ जाएगा? 98 ग्राम्स मेरे पास बच जाएगा। तो 98 ग्राम्स मेरे पास बचेगा। अगर ये मैंने पूछा होता मोल्स कितने बचेंगे तो फिर मैं इसको मास में चेंज नहीं करता, इसको मोल्स में चेंज करके मोल में से मोल माइनस करके आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? वॉट एवर इज आस्क्ड टू यू कि किसमें आपने निकालना है उस यूनिट में उसे चेंज कर ले बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Gas jar contains, a gas jar contains 128 grams of SO2, 128 grams of SO2. Out of this 3.01 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड, व्हाट मास ऑफ SO2 रिमेन्स इन द गैस जार? गैस जार में 128 ग्राम्स SO2 थी, उसमें से 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स स्केप कर गए। रिमेनिंग मास क्या है? अब मुझे जो इनिशियल मास गिवन है वो भी मास है, रिमेनिंग भी मुझे मास चाहिए, तो व्हाट शुड आई डू? आई शुड कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू मास एंड देन सब्सट्रैक्ट द मास स्केप फ्रॉम द इनिशियल मास टू गेट द फाइनल मास। इज दैट क्लियर? यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो मेरे पास इनिशियल मास क्या है? इनिशियल मास इज 128 ग्राम्स। अब मैंने निकालना है मास एस्केप्ड, क्योंकि मास में से मास माइनस करूंगा तो रिमेनिंग मास निकलेगा। मास एस्केप्ड के लिए मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं तो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप हुए वो गिवन है 3.01 इंटू 10⁻23। मास मैंने निकालना है मोलर मास ऑफ SO2। SO2 का 32 है, 32 इज इक्वल टू 64, x बाय 64 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। 23 से ये कटेगा, 3.01 ये 2 से जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 64 बाय 2 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। That means 3.01 into 10⁻23 molecules of SO2 weigh equal to 32 grams. So that means what is the mass of SO2 escaping? 32 grams. Mass of SO2 remaining
will be 128 minus 32. 128 minus 32, that is equal to 96 grams of SO2. 96 grams of SO2 remains in the gas jar. अगर मैंने इसमें पूछा होता आपसे, if I would have asked what are the number of molecules remaining, तो फिर हम क्या करते, मॉलिक्यूल्स रिमेनिंग पूछे होते तो मैं इस मास को इसी फॉर्मूले से मास यहाँ पुट करके मॉलिक्यूल्स निकाल लेता, तो फिर मॉलिक्यूल्स में से एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स को माइनस कर लेता। प्लीज़ कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी मुझे रिक्वायर्ड है चाहिए, जो भी मुझे बाद में चाहिए, उसी यूनिट में बाकियों को चेंज करके माइनस कर ले, नहीं तो बार बार 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मोल कंसेप्ट। Next question is, ये सारे कंपटीशंस के क्वेश्चन है, कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, सिंपली शायद स्कूल में नहीं भी आएंगे, बट यू हैव टू डू द सिंपल क्वेश्चंस है। A gas jar contains 90 grams of NO. NO is nitric oxide. NO is nitric oxide. Out of this, 3.01 into 10 raised to power 6.02 into 10 raised to power 22 molecules escaped. इसमें से escape कर गए 6.02 into 10 raised to power 22 molecules escape कर गए। Calculate the number of remaining molecules. ये अब दूसरी तरह का हो गया। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, इसका मतलब मैंने रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे हैं, तो इनिशियल मास को आप मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लो, सो दैट मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूल्स माइनस कर लेंगे आप। सो दैट आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में से मॉलिक्यूल्स को माइनस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो पहले इनिशियल मास को, इसको मैं मास को मॉलिक्यूल्स में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिमेनिंग मॉलिक्यूल चाहिए। मास चाहिए होता तो इन मॉलिक्यूल्स को मास में चेंज करता, फिर मास में से मास माइनस करता। सो इनिशियल मॉलिक्यूल्स के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इनिशियल मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास 90 अपॉन मोलर मास, NO का मोलर मास 14 + 16 इज इक्वल टू 30। 90/30 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, 33 जार। सो ये आपके पास आएगा 18.06 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये इनिशियल मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ मॉलिक्यूल्स एस्केप्ड, कितने एस्केप किए हैं, 6.02 इंटू 10⁻23। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर लूंगा। 10⁻23 कॉमन आ जाएगा, 12.04 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ पे 22 था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप 6, ये था 22। ठीक है, अब इसको माइनस करूंगा बेटा मैं। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, 18.06 इंटू 10⁻23 माइनस 0.602, क्योंकि पावर सेम कर रहा हूँ, इंटू 10⁻23 आ जाएगा। 22 को 23 से किया, समझ गए ना बात को, इसको 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर लिया ना बेटा, 10 से डिवाइड किया 0.602 आ गया और वहाँ पे 23 आ गया। सो दैट ये पावर सेम है, इसको माइनस कर सकता हूँ। 10⁻23 कॉमन आ जाएगा, 18.06 माइनस 0.602, ये बेटा आपके पास नंबर और रिमेनिंग। ये पता लग गया बेटा पावर कैसे सेम करिए। 22 था, मैंने इस इक्वेशन को, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड किया तो 0.602 आ गया,
10 से मल्टीप्लाई किया 10⁻23 आ गया। तो ये आपके पास, इसको माइनस कर सकते हैं आप, एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर फॉर द रिमेनिंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस केस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कंसंट्रेशंस करूँगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, इफ़ यू हैव 5 प्रॉब्लम्स, 10 प्रॉब्लम्स, 20 प्रॉब्लम्स, सेंड इट टू मी। बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम्स, आप मत्था मारते रहोगे, लेकिन आप लोगों को नहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में नहीं समझ लग रही है, आप मेरे को क्वेश्चन भेज दीजिए थ्रू व्हाट्सएप, पिक लीजिए, कॉपी पे लिखिए, पिक लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर तो एक आधी प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी तो मैं आपको व्हाट्सएप वापस कर दूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास दैट विल बी ऑन सैटरडे की क्लास के अंदर विल स्टार्ट, आई विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर यू। फॉर एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर आप मेरे पास आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एक्सरसाइज, रिलैक्स अ बिट, बट स्टडी।